So, hello and welcome to EduGrow. Today we'll be starting with indefinite integration. So, in indefinite integration, and the thing is that you don't get too much questions from in JEE Mains and WBJEE from this topic as such, but I would not recommend you to leave this thing because its application will be coming in definite integration, and from definite integration lots of questions come. So definite integration covers a major chunk of the actually the JEE Mains and the WBJEE maths questions. So just go through the previous year questions of indefinite integration, which are very less in number, so it will be very covered in very less time. So, and just going through them will give you a rough idea of that, and for this I'll be assuming that you know all the previous formulas, like the formulas of integration of under root x square plus a square and all those things, and we'll be only covering questions in this class because it's a crash course meant for WBJEE 2021. So let us start. Okay, so we'll be starting with the first question, which says that integration of e to the power of 5 ln x minus e to the power of 4 ln x divided by e to the power of 3 ln x minus e to the power of 2 ln x dx, right? So how can we solve this question? So this is a very simple question which can be solved using the properties of logarithm, and so e to the power of 5 ln x, what we can write is that here this can be written as e to the power of 5 log of base ex. So this thing and this thing are same, so so first if I take this 5 to the power of x, now as this thing and this thing are same, so by the property of log, x to the power 5 will come here. Okay, so I can write this as let me remove this first. Let me write this as e to the power of ln x to the power of 5 minus, so I am taking the exponents to the power of x, ln x to the power of 4 divided by e to the power of ln x to the power of 3 minus e to the power of ln x to the x squared dx, right? So this boils down to this, and in the next step we are going to obviously take out all the x to the power coefficients or the terms, x cube minus x squared dx, right? So in the next step what we are gonna do is that we are gonna take x to the power 4 common from the numerator, so we are going to be left with x minus 1, and we are going to take x squared common from the denominator, so again we'll be left with x minus 1 dx, right? So in the next step what we'll do is that we'll obviously cut this x minus 1 and x minus 1, and here x squared will be cancelled out, so we'll be left with only x squared dx, right? X squared dx, so I am writing it here, x squared dx, and which will give me the result as x cube by 3 plus c, right? So this will be my answer. So now the c is the integration constant. In indefinite integration it comes as an integration constant. You don't need it in definite integration, but you just need to remember that you need to write this integration constant in your board's paper, because it is necessary. Marks will be cut if you don't write this, but in JEE Mains obviously it will be provided in the options, so you don't need to think about it that much in JEE Mains. Yeah, so we'll be moving to the second question next, which says that integration of sine squared pi by 8 plus x by 4 minus sine squared 7 pi by 8 plus x by 4 dx. So in this question we'll be using a trigonometric formula. You all should be knowing this formula, which says that sine squared a minus of sine squared b is equals to cos of a plus b multiplied by cos of a minus b, right? So this is the formula. Now if I treat a
as this whole thing and b as this thing, what I'm gonna get is that I'm gonna get integration of cos of, now this is a plus b, so this is 9 pi, sorry, this is 9 pi by 8, so 9 pi plus 7 pi is 16 pi, 16 divided by 8 is 2 pi, so 2 pi plus x multiplied by cos of, now a is this and b is that, so 9 minus 7 is 2, 2 divided by 8 is 4, 1 by 4 obviously, so this is going to be give me pi by 4, and x by 4 minus x by 4 is 0, so obviously this is x by 2, right, because 2 times x by 4 dx. Okay, so in the next step, so this will be coming out as a constant cos pi by 4, this thing will be coming out as a constant which is 1 by root 2 into cos of, now 2 pi plus theta, so 2 pi plus theta will be lying in the first quadrant and cos will remain cos and it will be positive, so cos of x by 2 into dx, now which will give me integration of cos is sine x by 2 divided by 1 by 2, so 2 will come in the numerator, obviously plus c, I forgot to write it, so 2 will be going in the numerator divided by root 2, now the answer will be root 2 sine of x by 2 plus c, right? Okay, so this was a medium level question, a bit lower than medium, but yeah, harder than easy. So next we move to the third question, which says that x squared plus sine square x within brackets into sec square x divided by 1 plus x squared dx. So this is a simple question, we just need to apply a certain, I mean, trick in this, which is that if I write x squared plus and sine squared as 1 minus cos squared x, okay, into sec squared x, so I am writing sine squared as 1 minus cos squared x here, okay, so divided by 1 plus x square into dx, okay, so I did this. So in the next step I am going to separate this, okay, so I am going to separate x squared plus 1 as one integral and minus cos squared as another integral. So this is the first integral, which is 1 plus x squared, okay, so sec squared x will remain as it is divided by 1 plus x squared. So now you will be getting that why I actually did that, sine squared as 1 minus cos squared, wrote that, now cos squared x into sec squared x, so that will be 1, okay, divided by 1 plus x squared, okay, dx, right? So obviously 1 plus x squared will be cancelled out from the numerator and the denominator, and we will be left with sec squared x only. So the integration of sec squared x will give me tan x, okay. I am assuming that you all know the basic formulae of indefinite, and this thing is the integral of tan inverse x, okay, plus c obviously. So this is the answer of the third question. So next we move to the fourth question, which says that integration of dx divided by under root of 9 minus 16x square, right? So this is a good question, this is a good level question for JEE Mains and WBJ. So what we are going to do is that we are going to just dx divided by under root, we are going to take 16 common outside, so if 16 comes and outside the root, it's going to become 1 by 4, which is a constant, so it will come outside the integral sign, okay. So 9 divided by 16 minus x squared, because we have taken 16 common under the root, okay, minus of x squared dx. So in the next step, what does this formula remind you of? So this formula is kind of like similar to dx divided by under root of a square minus x square. So a square minus x square is the formula of sine inverse x by a, right? So if I do this is just a one step sum actually, so it was pretty easy. So this is going to be
sine inverse of x divided by a. Now what is a? A is obviously 3 by 4 plus c obviously, which is going to give me 1 by 4 sine inverse of 4x by 3, right, plus c, which is your answer. Okay. So in the next question we have key. So next we move to the fifth question, which says that integration of sine 2x minus sine 2k divided by sine x minus sine k plus cos x minus cos k dx. Okay, so what we are going to do is that in this question we are going to write sine 2x as sine x plus cos x. So we can write the sine 2x as this, right, because sine squared x will be plus cos squared x will be 1. This will get cancelled out with this one and we'll be left with 2 sine x cos x, which is the formula of sine 2x. Okay, so this is in one bracket, and minus of the same we'll be doing with sine 2k, which is sine k plus cos k minus whole square minus 1. Okay, divided by, we'll be rearranging the terms in the denominator. We'll be taking the positives in one bracket and the negatives in the other bracket, which is sine k plus cos k, right, obviously into dx. And next, in the next step, so if we remove the third brackets, so one and this one will get cancelled out and we'll be left with sine x plus cos x whole squared minus sine k plus cos k whole squared divided by sine x plus cos x minus sine k plus cos k, right, into dx. Okay, so after this if we take this as a and this as b, so this a square minus b square, so this will simplify into a plus b into a minus b. Now a minus b is this minus this, so the denominator is also sine x plus cos x within brackets minus sine k plus cos k within brackets. Okay, so so the a minus b part will get cancelled out and we'll be left with only the a plus b part, which is within brackets sine x plus cos x plus, so this was the a and this is the b, sine k plus cos k, right, obviously into dx. Okay, the whole part, and this has been reduced to a very simple integration. The integration of sine x is minus cos x plus cos x integration is sine x plus these two are constants, right, sine k and cos k are constants obviously, into x, integration of dx is x plus c, right. So this was a good sum. We just had to just rearrange the terms and just use some trigonometric formulae. Okay, yeah, so so we'll be moving to the sixth question next on the formula based questions part topic. The sixth question says that integration of x square plus 3 divided by x to the power 6 into within brackets x square plus 1. So there is a particular technique to solve this thing. You just need to like rearrange the terms and solve them. So I can break this integral into x square plus 1 divided by x to the power 6, the denominator will remain the same, plus I will be left with 2, right, 2 divided by x to the power 6 into x square plus 1, okay, dx obviously. So in the next step
this x squared plus 1 and this x squared plus 1 will get cancelled out, and we will be left with 1 by x to the power 6 dx, plus we will be taking the 2 outside the integral, and then we will be actually splitting this one, the one which is left in the numerator, as 1 plus x to the power 6 minus x to the power 6 divided by x to the power 6 into x squared plus 1 dx, right? So this can be done. Okay, we just made the one like this. So this integral is pretty easy. So integral of x to the power minus 6 dx will be x to the power minus 5 divided by minus 5. So this minus, so this integral is this, so this that part is solved. Now the 2 is outside. I'll be splitting this in separating this integral, so it's going to give me 1 plus x to the power 6 divided by x to the power 6 multiplied by x squared plus 1, okay, dx, plus minus integration of, now this x to the power 6 and this will get cancelled out from the top and the bottom, so we will be left with 1 plus x squared plus 1 dx. Okay, in the next step it is going to remain as it is, and x to the power 5 divided by 5 plus 2 multiplied by, I forgot to close the bracket. Okay, so this thing can be written as can be thought of as 1 plus x squared whole cube. So so it is kind of like 1 cube plus x squared whole cube. So now the formula for a cube plus b cube is a plus b multiplied by a squared minus ab plus b squared, right? So this is the formula for this thing, a plus b whole cube. So substituting this formula here, we are going to get 1 plus x squared x to the power 6 x squared plus 1 into what, so a squared minus ab plus b squared, right? Okay, dx. Now obviously let me just remove this. Now obviously I can say that this is the integration of tan inverse x, okay, or this is the differentiation of tan inverse x. So integration of this will give me tan inverse of x, tan inverse of x. So in the next step, again it's a bit lengthy sum, I would say, but yeah, so 2, I forgot to close the bracket again, so 2 into, so this will get cancelled out, and we will be left with only 1 minus x squared. Let me write this on that side. Okay, so we write it here. So it's we'll be left with minus x to the power okay, so this is minus 5, right? This is minus 5. Okay, so x to the power minus 5 divided by 5, okay, plus 2 multiplied by, so this will get cancelled out, and we'll be left with 1 minus x squared plus x to the power 4 divided by x to the power of 6 integration dx and minus of tan inverse x. Okay, so this is going to give me x to the power minus 5 divided by 5 plus 2. Now I am doing it directly. Okay, doing it directly, 1 by x to the power 6 will be giving the same result as this, so minus x to the power minus 5 by 5. Now x squared by x to the power 6 is x to the power 1 x to the power minus 4, right? So x to the power minus 4 will give me minus of x to the power of minus 3 divided by 3, and this is x to the power minus 2, so
minus 1 by x, or yeah, so minus 1 by x. So obviously then minus tan inverse of x, okay, obviously plus c. So you can rearrange these terms. So the final answer will be minus 3x to the power of minus 5 divided by 5 minus x to the power of minus 3 divided by 3, minus 2 by 3 minus 2 by x minus 2 tan inverse of x plus c, obviously. Okay, so this is the final answer. Yeah, so that is your final answer. And yeah, you just had to just do a substitutions, not substitutions, but do some like break the one here and like do some splitting and thing. Okay, so this was a good sum. Okay. Okay, so guys, we'll be moving to the next part of the techniques of integration, which is the substitution based questions. Now in substitution based questions, what do you have is that you just need to represent some function of x in the form of another function of some other variable. Like if I take in this question, if I take a cube plus x's cube as a function of t, I'll have to represent the whole thing as a function of t, the whole thing x to the power 5 within bracket within under roots a cube plus x's cube in the function of t only, and I'll have to change the variables. So substitution based questions में क्या है, तुम्हें variables को change करना है सिर्फ to make the integration easier, right? So अगर like इसमें मैं a क्यूब प्लस एक्स क्यूब को अगर मैं टी स्क्वायर पकड़ लूँ, अगर मैं टी स्क्वायर पकड़ लूँ, मैं तो ये एफ ऑफ टी हो गया ना एक तरीके से. तो मैं ये किसी भी चीज़ को एज दिस, ये चीज़ को मैं किसी भी वेरिएबल अदर वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में. मुझे अगर मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लूँ एज अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल, तो मुझे अकॉर्डिंगली यहाँ पूरा इंटीग्रल में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तब मैं पूरा इंटीग्रेशन को, ये तो डबल इंटीग्रेशन नहीं है ना, सिर्फ एक वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, तो मुझे ये dx को dt में ही बदलना पड़ेगा. ओके, तो यही फंडा है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस का. सो अगर मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट करूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो मुझे क्या मिलेगा, 3x² dx इक्वल्स टू 2t dt. ठीक है. तो ये हो गया ना. तो 3x² dx, तो मैं बोल सकता हूँ कि x² dx मेरा हो जाएगा 2/3 t dt. ओके, t dt. सो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को i नाम दे दूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं i को लिख सकता हूँ कि x², तो x², तो x टू द पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² इंटू x टू द पावर 3. ओके, तो यहाँ ये वाला x² dx, ये वाला x² dx मेरा क्या हो जाएगा, 2/3 t dt. ठीक है, और ये वाला तो मैं ये वाला मैं t² नाम दे ही चुका हूँ, तो अंडर रूट हो जाएगा मेरा इंटू t, और मेरा जो रह जाएगा वो x³ वाला पार्ट रह जाएगा. तो x³ वाला पार्ट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. अगर a³ प्लस x³ t² है, तो x³ क्या हो जाएगा मेरा, t² माइनस a³ हो जाएगा मेरा. ठीक है ना. तो ये हो गया, मैं पूरा फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ t में बदल दिया अब. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा अगर इसको तो 2/3 में बाहर ले लेता हूँ, और t मिलके हो जाएगा t² इंटू t² माइनस a³ dt. राइट, यही हो जाएगा, ये t और ये t मिलके. ठीक है. तो इस नेक्स्ट स्टेप में मैं पूरा मतलब इंटीग्रेट ही कर देता हूँ. तो t² इंटू t² हो जाएगा मेरा t टू द पावर 4, और t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस
टी स्क्वायर तो ए क्यूब तो कांस्टेंट है, तो ए क्यूब ही रहेगा और ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, राइट, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये तुम्हारा आंसर तो निकल गया ना, पर फर्स्ट मुझे क्वेश्चन में एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही दिया था, तो मुझे आंसर भी एज अ एक्स ही दिया रहेगा ऑप्शंस में, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो टी टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2/3, तो यहाँ से मैं टी क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, राइट, टी क्यूब पूरा कॉमन ले लेता हूँ, टी क्यूब मैं पूरा कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं टी क्यूब पूरा कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर बाई 5 बचा रहेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ ए क्यूब बाई 3 बचा रहेगा, ठीक है, प्लस सी देना, हाँ वहाँ पे दिया है, तो 2/3। टी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब टू द पावर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये टी स्क्वायर है ना, 3/2 इंटू टी स्क्वायर को मैं यही लिख दूंगा, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 5 माइनस ए क्यूब बाई 3, और फिर तुम इसे रीअरेंज ऑब्वियसली कर सकते हो। ठीक है, ये 3/2 है, क्यों, क्योंकि टी तो हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, तो टी क्यूब हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर इंटू टी विच इज़ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 3/2। अब यहाँ से तुम एलसीएम लेके वो लेके उसे भी कर सकते हो, वो कोई उतना मतलब बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो ये इसका मेन क्रक्स है कि तुम्हें ये एफ ऑफ एक्स था ना, एफ ऑफ एक्स को तुम्हें एफ ऑफ टी सॉरी ये एफ ऑफ एक्स था, ये एफ ऑफ एक्स था, इस एफ ऑफ एक्स को तुम्हें एफ ऑफ टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो दैट योर इंटीग्रेशन बिकम्स मच ईजियर। ओके, सो ये डेफिनेट में भी यूज़ हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस में भी। सो ये चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा कि किसको किससे रिप्लेस करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक अगर होगा तो कैसे, अगर एल्जेब्रिक टू ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक टू एल्जेब्रिक, ये तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा। So guys, we'll be moving to the next question. In this question, this is a pretty good question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है पर किया जा सकता है, मतलब ये जेई लेवल में आ सकता है, ये WBJ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है, dx। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहली चीज़ तो इसे रैशनलाइज कर दूँगा। ठीक है, इसे मैं रैशनलाइज कर दूँगा e टू द पावर x, तो मैं ऊपर नीचे e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 जो मल्टीप्लाई कर दूँगा, और उसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा, तो ये e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट के अगर बाहर आएगा तो e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 ही आएगा, और ये अंडर रूट में ही रहेगा, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इसके अगले स्टेप में मैं दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए टू द पावर 2x माइनस 1 dx माइनस ऑफ dx डिवाइडेड बाई, ये दो चीज़ में मैं डिवाइड कर दिया, और ये देखो ये अच्छा सम क्यों है, इसलिए कि मैं इसको अगर I1 बोलूँ और इसको मैं I2 बोलूँ, तो I1 और I2 में मुझे दो तरह के सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे कि अगर मैं पहले I1 को सॉल्व करना चाहूँ तो लेट्स से मैं सॉल्विंग फॉर I1 करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं I1 के लिए e टू द पावर x को t मान लूँगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू डी टी। तो I1 मेरा I1 जो अल्टीमेटली हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो हो जाएगा e टू द पावर x dx हो गया मेरा dt, तो ऊपर में मैं dt लगा दूंगा, और नीचे मेरा क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1, तो e टू द पावर 2x मेरा हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, और माइनस 1 तो रहेगा एज इट इज़। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ
तो ये देखो, ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला जो आएगा वो है ln t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस C1 हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रल। और अब मेरा I2 का टाइम है, ठीक है। I2 के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, मैं फिर e⁻x को t मान लूँगा और ये डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा आ जाएगा e⁻x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और तो सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं I2 को लिख सकता हूँ कि ये देखो, तो e⁻x dx dt है, तो dx मेरा हो जाएगा, ऊपर में dx है ना, तो dx मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। dx मेरा हो जाएगा dt बाई e⁻x, और e⁻x क्या है, t है, तो मैं dx को लिख सकता हूँ dt डिवाइडेड बाई t, ओके। तो dt डिवाइडेड बाई t अगर मैं dx को लिख दूँ और मुझे डिनोमिनेटर लिखना है, वो है अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ टी का। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ टी प्लस C2, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इसको I कहूं, तो I क्या है, I1 प्लस I2 ही है ना, I1 प्लस I2 ही है, और I1 प्लस C2, हाँ लिख दिया मैंने। तो अगर मैं इसको I1 प्लस I2 कह दूं, तो ln t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट, प्लस ऑफ सेकेंड वर्ड्स ऑफ t प्लस C1 प्लस C2, लेट से मैं C कह दूं। और पूरा फाइनल आंसर अगर मैं t को फिर x में रिप्लेस कर दूं, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली करना ही होगा ना, क्योंकि मुझे x में ही आंसर दिया होगा ऑप्शंस में। तो t को मैं e⁻x लिया था, तो उससे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं -1 प्लस सेकेंड वर्ड्स ऑफ e⁻x प्लस c, ठीक है। ओके, ये मेरा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x बाई e⁻x माइनस e बाई एक्स टू द पावर x इंटू ln x dx, ठीक है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के क्या लगेगा, पहले लगेगा कि अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब बड़ा नहीं है, पर मतलब इक्वेशंस कुछ मतलब अजीब टाइप के हैं। x बाई टू द पावर x माइनस उसका रेसिप्रोकल टू द पावर x इंटू ln x dx, ठीक है। पर यही मतलब स्टाइल है जेई का या WBJ का, मतलब तुम्हें कुछ अलग अलग इक्वेशंस, मतलब अजीब अजीब इक्वेशंस दिए होंगे, और उसमें से अगर तुम एक ही सब्स्टिट्यूशन करना सीख जाओ, मतलब एक सही से सब्स्टिट्यूट कर दो एक चीज़ को, तो तुम्हें पूरा आंसर 2 या 3 लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वही फंडा है, ठीक है। ये सिर्फ ये प्रैक्टिस से ही आता है, और कुछ चीज़ें नहीं आता है। तुम्हें दिखना चाहिए कि अगर मैं इसका सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, तो ये तुम्हें प्रैक्टिस से ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग x बाई ई टू द पावर x को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम t मान लिए, और मैं अगर अब log ले लूँ बोथ साइड, तो x ln x बाई ई, x बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू ln t हो जाएगा मेरा। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड, ये तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो ln x बाई ई प्लस ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ई बाई एक्स होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा ना, इनटू एक्स बाई ई का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 1 बाई ई, ये पूरा इनटू dx, ठीक है ना। और इस साइड में हो जाएगा 1 बाई टी dt, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, ई कट जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर t को मैं इस साइड ला दूं, तो t मैंने एज्यूम किया हुआ है ये x बाई टू द पावर x, ठीक है। तो x बाई ई होल टू द पावर x
इंटू डी एक्स, मेरा इस साइड और उस साइड डी टी, ठीक है। तो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब इस वन को मैं लिख सकता हूँ एल एन ई, ठीक है ना, क्योंकि एल एन ई वन होता है। इस नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ एल एन ई लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब इस नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस लॉग का प्रॉपर्टी से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाई ई इंटू ई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग का प्रॉपर्टी से, टू x बाई ई टू द पावर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। और फिर ये ई कट जाएगा तो मेरा डी टी हो जाएगा मेरा डी टी हो जाएगा x बाई ई, या मैं डी टी बाई टी लिख देता हूँ, हाँ डी टी बाई, क्योंकि ये पूरा t है, ये पूरा t है, ठीक है। ये अगर मेरा पूरा t है तो ये अगर नीचे जाएगा तो डी टी बाई टी हो जाएगा, तो डी टी बाई टी क्या हो जाएगा मेरा, ये मैंने लिख दिया है, और ये बचा है, तो एल एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स डी एक्स। अब देखो कितना आसान हो गया, देखो ये एल एन एक्स डी एक्स और ये एल एन एक्स डी एक्स, तो एल एन एक्स डी एक्स में डी टी बाई टी हो गया। अब देखो कितना आसान हो जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का इतना स्टेप लिया है और इंटीग्रेशन में कितना आसान, कितने कम स्टेप्स में सॉल्व करूँगा। देखो अब x बाई ई टू द पावर x को मैंने t लिया है, ठीक है, माइनस ऑफ ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो 1 बाई टी हो जाएगा, और एल एन एक्स डी एक्स है तो ये डी टी बाई टी हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो तुम इजीली यहाँ से आंसर लिख सकते हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा t माइनस ऑफ टी टू द पावर माइनस 3 बाई 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी, और इसके सॉरी ये तो मेरा हो जाएगा -2, तो माइनस तो 1 बाई टी हो गया ना मेरा, सॉरी हाँ, क्योंकि टी टू द पावर -2, हाँ तो अगर फिर मैं t को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये t को x बाई टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर, तो x बाई ई टू द पावर x प्लस ऑफ e बाई एक्स टू द पावर x प्लस c, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ओके। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ क्वेश्चन, तो वो है 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जेई में पहले और आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को तुम्हें, इस पैटर्न को तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आ जाए तो तुम्हें इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर का पावर ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से बड़ा है, सॉरी कम है, डिनोमिनेटर का पावर अगर मैं टोटल करूँ तो तो बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर को बाहर लाते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा x टू द पावर 10, तो अगर मैं बाहर लाऊं तो अंदर क्या बचेगा, x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर ऑफ -5, और स्क्वायर तो रहेगा ही, और dx भी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस x टू द पावर 10 को डिवाइड कर देता हूँ ऊपर न्यूमरेटर से, तो 5x टू द पावर ऑफ -6 प्लस 4x टू द पावर ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर ऑफ -4 प्लस x टू द पावर ऑफ -5 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो ये अब मैं डिनोमिनेटर को जो ब्रैकेट में है उसको t मान लूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये लेट कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -4x टू द पावर ऑफ -5 हो जाएगा, प्लस -5 x टू द पावर ऑफ -6 हो जाएगा dt मेरा। अब देखो ये पूरा मेरा, ये dx देना भूल गया मैं, dx ये पूरा जो है यही मेरा न्यूमरेटर भी है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं i को लिख सकता हूँ एज माइनस कॉमन ले लिया
तो dt डिवाइडेड बाय ये वाला मैंने t माना था, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये पूरा आसान हो गया बहुत। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t हो जाएगा प्लस c। टी टू द पावर माइनस का होता है -1/t, टी टू द पावर -2 का होता है -1/t इंटीग्रेशन। तो t मैंने क्या माना था, हाँ, तो ये 1/x टू द पावर ऑफ 1/x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 5 प्लस c, ठीक है। अब फिर तुम एलसीएम लेके इसको कर सकता, वो जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो तुम मार्क कर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह, हाँ, तो गाइज वील बी मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट। सो व्हाट हैज़ बीन गिवन इन द फिफ्थ क्वेश्चन इज sin to the power -11/3x into cos to the power -1/3x dx, राइट। सो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चन है जो बहुत बार जेई में और WBJEE में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने का भी एक फिक्स तरीका होता है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग कैसे करते हैं इसे। तो इंटीग्रेशन में अगर मैं इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो साइन तो माइनस हट जाएगा पावर से, 11/3x मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 1/3x, और dx तो है ही वैसे। तो इसके बाद हम लोग ये देखो जो पावर है ना, दोनों पावर है उसको हम लोग ऐड अगर करें तो 11 + 1 होता है तुम्हारा 12/3 होता है 4, तो एक होल नंबर आ गया या नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। तो अब पूरा 4 तो है ना जो पावर, अब इस पूरे डिनोमिनेटर को और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग sec टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे या डिनोमिनेटर को हम cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे। तो अगर तो जो दोनों का एक ही मतलब है ना, sec से मल्टीप्लाई करना या cos से डिवाइड करना। तो अगर लेट्स से सपोज हम लोग जो इन दोनों ऐड करके जो पावर आया ना, तो वो पावर ही हमें सेक के टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो सेक टू द पावर 4x, राइट। तो एज आई हैव, क्योंकि हम लोगों ने इससे डिवाइड किया तो ऊपर सेक टू द पावर 4x आएगा, क्योंकि वो इक्वेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ऊपर तो सेक टू द पावर 4x रहेगा ही, ठीक है। ऊपर तो सेक टू द पावर 4x रहेगा ही, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा cos, तो ये पूरा कट जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा मेरा, देखो तो 4 - 1/3 होता है 11/3, और साइन 11/3x इंटू सेक 11/3x हो जाएगा मेरा tan 11/3x। अब देखो अब ये सॉल्वेबल लग रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, तो अगर tan और sec में दिया है तो ऑब्वियसली tan x को हम t मान लेंगे। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, राइट। तो इसके बाद व्हाट वील डू नेक्स्ट इज दैट हम लोग ये तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो sec स्क्वायर x dx, राइट। तो sec स्क्वायर x dx, तो यहाँ पे अगर मैं sec स्क्वायर x dx ले लूँ तो sec स्क्वायर x बाकी रहेगा, और तो एक sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर x, राइट। और tan x है मेरा t, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + t स्क्वायर dt, तो ये वाला हो गया पूरा, ये जो sec स्क्वायर x dx है, और डिवाइडेड बाई t टू द पावर 11/3, राइट। तो दिस इज माई फाइनल इंटीग्रल विच कम्स आउट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये तो पूरा सिंपल हो गया ना, तो ये अगर मैं 11/11 t टू द पावर 11/3 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो -11/3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 - 11/3 होता है तुम्हारा, ये कितना होता है, वो ऊपर 6 - 11 होता है -5, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5/3, ये प्लस में, ठीक है, dt। अब ये दोनों तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा t टू द पावर -11/3 + 1, जो कि होता है तुम्हारा t टू द पावर ऑफ -8/3
डिवाइडेड बाई -8/3 प्लस होता है तुम्हारा t टू द पावर ऑफ ये 5/3 -5/3 प्लस 1 जो कि तुम्हारा -2/3 होता है ना, 2/3 2/3 -2/3 डिवाइडेड बाई तुम्हारा -2/3, ओके, प्लस सी ऑब्वियसली। तो अगर मैं इसे फाइनली लिखना चाहूँ तो 10 को मैं 10x से सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो -3/8 हो जाएगा मेरा, -3/8 इंटू 10 टू द पावर -8/3x प्लस सॉरी -3/2 इंटू 10 टू द पावर -2/3x प्लस सी। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये टिपिकल था, तो तुम्हें यहाँ पे वो मतलब डिनोमिनेटर में लाना था, और जो मेन पार्ट है इस सम का वो है कि तुम इस दोनों पावर को अगर ऐड करोगे जो उसका सम आएगा उससे तुम्हें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इस x टू द पावर दैट पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ये सम होता है। तो ये थंब रूल लिख लो कि अगर मुझे कहीं पे भी अगर न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, कहीं पे भी अगर मुझे साइन टू द पावर nx इंटू कॉस टू द पावर mx दिया हो और वो m और n नेगेटिव हो, तो मैं डिनोमिनेटर में लाके उन लोगों को m प्लस सेक टू द पावर m प्लस n x से मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो गाइज वील बी मूविंग टू द 6th क्वेश्चन of substitution based questions on indefinite. So it has been given that integration of under root cos x minus cos cube x divided by 1 minus cos cube x dx. ठीक है, तो what we have to do in this is that, तो ये क्वेश्चन भी मतलब जेई में या WBJEE में आ सकता है, क्योंकि मतलब इस तरह का क्वेश्चन देता है, ये उतना लेंदी भी नहीं है, पर तुम्हें मतलब वो ठीक से सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखूं तो अगर मैं cos x को कॉमन ले लूं तो व्हाट विल बी लेफ्ट, आई विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया ऊपर से। ठीक है, तो ये तो साइंस, हाँ, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया dx, और नीचे क्या रहेगा, मैं इस cos क्यूब एक्स को लिखता हूँ cos टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये cos क्यूब एक्स ही हो गया, तो अंडर रूट इसमें आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में तो अंडर रूट cos x ऐसा ही रहेगा, और ये साइन x बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x का अंडर रूट साइन x बाहर आ जाएगा रूट के, तो और नीचे तो ये रहेगा ही cos टू द पावर 3/2x dx। ऑलराइट, तो इसके बाद देखो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, अगर मैं इस cos टू द पावर 3/2x को सब्स्टिट्यूट कर दूँ t से, ठीक है, और अब हम लोग अगर इसे डिफरेंशिएट करें इस चीज़ को बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा 3/2 इंटू कॉस टू द पावर 1/2। ठीक है, x इंटू चेन रूल की वजह से साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है dx, तो ये dx होगा, यहाँ पे एक dx होगा, हाँ, तो 3/2 इंटू कॉस टू द पावर 1/2x इंटू साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो हाँ, तो ये वाला चीज़ जो है, ये वाला चीज़ तो कॉस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx इक्वल्स टू 2/3 dt। ऑलराइट, मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब देखो ये वाला जो है, ये वाला ही मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट ही है, तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस इन द original integral I, and the numerator will be dt and the denominator will be under root
cos to the power 3/2 is t, so 1 minus t स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है ना। तो ये देखो और हाँ ये तो 2/3, हाँ 2/3 के एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये देखो अब ये तो पूरा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया ना, और डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो उसी तरीके से तो 2/3 हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे 1 है और तो हाँ अगर हम लोग अब t को वो इससे रिप्लेस कर देते हैं तो हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ cos टू द पावर 3/2x प्लस c, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ मतलब ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना था cos टू द पावर 3/2x को, ठीक है, ओके। हाँ तो गाइज हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन के एक सब पार्ट में मूव करेंगे जो कि स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनका इंटीग्रेशन करने का तरीका जो है वो पता चलेगा। तो अगर सपोज तुम्हें दिया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x 10 टू द पावर समथिंग 11/2x प्लस sec टू द पावर और cos टू द पावर से 5/3x dx, तो ये सब चीज़ तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा। तो इसमें 6 या 7 पॉइंट्स हैं, तो वो अगर तुम मतलब सीख लोगे तो सभी इंटीग्रल ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रल तुम सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट जो है वो है कि फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल्स टू दिस और दिस। तो ये तो तुम्हें स्टैंडर्ड फार्मूला है जो फार्मूला शीट में भी दिया होगा और तुम्हें याद भी होगा। और तो ये यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है कि यहाँ पे मॉड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड आता है क्योंकि ln के अंदर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड आएगा। तो ये डेफिनेट में तुम्हें और भी मतलब इसका यूज़ तो नहीं पर एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि मॉड आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि है तीनों का ये इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस एक्स, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन एक्स और dx डिवाइडेड बाई a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, और यहाँ पे तुम्हारा a, b, c बिलोंग्स टू इंटीजर, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है a, b, c। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें करना होगा कि रिप्रेजेंट साइन एक्स और कॉस एक्स। अगर साइन एक्स होगा तो तुम साइन एक्स रिप्लेस करोगे, अगर कॉस एक्स होगा तो तुम कॉस एक्स रिप्लेस करोगे, अगर साइन एक्स कॉस एक्स बोथ हुआ तो तुम बोथ रिप्लेस करोगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ tan x/2 एंड देन टेक tan x/2 इक्वल्स टू t, ठीक है। तो अब मैं इसका तुम्हें प्रूफ तो नहीं बताऊंगा पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो अगर तुम cos x को देखो तो इसका अगर मैं tan x/2 से रिप्लेस करना चाहूँ तो ऐसा कुछ होता है tan² x/2, ठीक है। और sin x का होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² x/2, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं तो मैं यही इंटीग्रल ले लेता हूँ, ये जनरल जो है तो इससे पूरा वो दो भी कवर हो जाएगा। तो अब देखो, तो 1 प्लस tan² x/2 तो ये डिनोमिनेटर के डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो ऊपर एलसीएम होके वो न्यूमरेटर में जाएगा और ये sec² x का ही फॉर्मूला है, तो sec² x/2 dx होगा, ठीक है। sec² x/2 है, dx होगा। और नीचे क्या आएगा, सपोज ये आ जाएगा, सपोज मैं tan² x/2 को मैं t अगर बोलूँ तो z ले लेता हूँ, z अगर मैं बोलूँ तो 1 माइनस z² आएगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम प्लस b इंटू 2z, ठीक है, और प्लस c इंटू 1 प्लस z², क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है ना 1 प्लस z², ठीक है, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लेने के बाद तो यही एलसीएम आएगा ना 1 प्लस z², ठीक है। तो तो ये 2 है। तो अब देखो, तो अब ये क्या हो गया,
हाँ, तो अब मैं अगर ये तो z नहीं है, z मतलब tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो अगर मैं अब tan x बाई टू को मैं t मान लेता हूँ तो मेरा जो न्यूमरेटर है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो 1 बाई टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स मेरा हो जाएगा dt। तो ये तुम्हारा पूरा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू तो क्या हो जाएगा मेरा 1 बाई टू इंटू और मेरा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स हो जाएगा मेरा 2dt। ठीक है, तो इसको मैं 2dt से रिप्लेस कर दूंगा और जो सब z है या tan x बाई टू है, जो सब tan x बाई टू है उसको मैं t से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये तुम्हारा पूरा t में एक ऊपर तो dt और नीचे t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक का तुम्हें पता ही है, हाँ, तो तुम उससे रिप्लेस कर सकते हो dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ऐसे ही तुम्हें वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें जो ये है ये करना होगा। ठीक है, tan x बाई टू लेना होगा। ठीक है, तो ऑलराइट, तो थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा। तो फोर्थ पॉइंट का ए पार्ट जो है वो तो सपोज तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स का तो पता ही है, पर अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स का कुछ पावर ले लूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा देख लेते हैं। वो तो cos टू द पावर एम एक्स है या sin टू द पावर एम एक्स है इंटीग्रल। तो यहाँ पे m जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है और ऑड है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें जो करना पड़ेगा वो है अगर cos रहा तो sin x को t पकड़ना, अगर sin रहा तो cos x को t पकड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ जो होगा। तो सपोज अगर मेरा cos टू द पावर 3x रहा तो अगर मैं इसको sin x को मैं t पकड़ लूँ तो ऑब्वियसली, तो हाँ, तो देखो अगर मैं sin x को t पकड़ लूँ तो cos x dx हो जाएगा मेरा dt, cos x dx हो जाएगा मेरा dt। तो एक cos x तो वहाँ पे चला गया, तो मेरा जो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी क्यूब बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम अगर ऑड रहा तो इसका जो इंटीग्रेशन दिया है, जो इंटीग्रल दिया है कॉस है उसका तुम उल्टा लोगे। तो कॉस दिया तो साइन होगा, साइन दिया तो कॉस होगा। ठीक है, उल्टा नहीं पर कॉस, तो हाँ, तो वैसा होगा। अगर बी पार्ट में आते हैं हम लोग, तो बी पार्ट में अगर एम तुम्हारा, ये जो एम है, एम तुम्हारा अगर इवन नेचुरल नंबर हुआ तो तुम क्या करोगे, तो अगर इवन नेचुरल नंबर हुआ तो तुम्हें एक ही प्रोसेस अपनाना है, वो है रिड्यूस पावर टू 1। रिड्यूस पावर टू 1, सपोज एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x है, ये 4 इवन है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने पूरा डायरेक्ट लिख दिया है, ये तुम्हें सॉल्व करने के बाद ही आएगा। तो 3/8 प्लस इतना, तो इन सब में देखो cos का 1 पावर है, cos 4x का 1 पावर है, cos 2x का भी 1 पावर है। तो तुम्हें रिड्यूस पावर टू 1 करना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 पार्ट तुम्हारा, और 2-3 पार्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब 5th पार्ट में मूव करते हैं। और ये थोड़ा, ये जो 5th to 8th पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं बोलूँगा, पर मतलब तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि मतलब अगर तुम 1 to 4 पार्ट देखो तो तुम वो इंट्यूटिवली समझ सकते हो कि अगर मेरा ये होगा तो ये, अगर एक सम करोगे तो भी मतलब याद रह जाएगा तुम्हें। और जो 5th to 8 है वो थोड़ा तुम्हें 2 या 3 या 4 प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि तुम इतना सब कुछ तो देखो याद नहीं कर सकते। मतलब 8 पॉइंट्स तुम एक ही सब पर, वो भी सब का सब टॉपिक का भी जो एक उसके अंदर का भी सब पार्ट है। ठीक है, तो तुम 8 पॉइंट्स तो इतना बड़ा सिलेबस में याद नहीं कर सकते, और मैथ्स में याद करना चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम ईज़िली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके तुम मतलब याद हो जाएगा तुम्हें, मतलब पता हो जाएगा इसके लिए ये करना है, ये करना है, तुम्हें वो ऑलरेडी मतलब क्लिक कर जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो हम देख लेते हैं। तो हम अगर सभी का एग्जाम्पल तो नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, पर जो मतलब एक एक का मैं ले लूँगा, थोड़ा मतलब थोड़ा बता दूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, तो 5th जो है, तो इसका जो है देखो sin टू द पावर px इंटू कॉस टू द पावर qx dx। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक जो साइन और कॉस में है उसका समथिंग टू द पावर साइन एक्स इंटू समथिंग इंटू कॉस एक्स टू द पावर इंटू समथिंग टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स, और ये तुम्हारा पी और क्यू में डिपेंड करता है फंक्शन, ठीक है। तो पी और क्यू में डिपेंड करेगा तो तुम्हें कौन सा स्टेप अपनाना है। तो पहले तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा पी और क्यू पॉजिटिव है या पी और क्यू नेगेटिव है। अगर पी और क्यू पॉजिटिव हुआ तो तुम ए और बी अपनाओगे, अगर पी और क्यू नेगेटिव हुआ तो तुम सी अपनाओगे, ठीक है। तो इफ सपोज पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, सो वी फर्स्ट मूव टू ए पार्ट। सो ए पार्ट सेज दैट आइदर पी और क्यू और बोथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइदर पी आइदर और क्यू और बोथ आर ऑड। तो इसका जो मतलब आया वो है तुम्हारा आइदर पी ऑड है तो क्यू इवन हो जाएगा, और तुम्हारा क्यू इवन है तो पी इवन है तो तुम्हारा क्यू ऑड हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट है बोथ, तो बोथ ऑड तो पी और क्यू बोथ ऑड, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पी और क्यू में, तो इनमें 3 कवर हो गया। तो पी ऑड क्यू इवन, पी इवन क्यू ऑड, पी ऑड एंड ऑल्सो क्यू ऑल्सो ऑड, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ले लेता हूँ एक सपोज, तो इसमें जो थंब रूल है, तुम्हें जो इवन वाला है ना, जो इवन वाला है उसके जो बगल में है, सॉरी जो ऑड वाला है उसके जो बगल में है उसको तुम्हें टी पकड़ना है। तो जो ऑड वाला है, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। तो यहाँ पे मेरा p ऑड है और q इवन है, ठीक है। p ऑड है और q इवन है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, जो ऑड वाला है उसके जो बगल में है उसको t पकड़ लो। तो cos x ऑड वाले के बगल में, तो cos x को मैंने t पकड़ लिया। और सपोज़ यही एग्जांपल मैं करवाऊंगा तो ध्यान से देखना। तो cos x को अगर मैंने t पकड़ लिया तो ये देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और अगर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया मेरा, तो मेरा जो i है वो क्या रिड्यूस होगा। तो cos x को मैंने t पकड़ लिया है, तो ये cos टू द पावर 4 तो t टू द पावर 4 तो वैसे ही आ जाएगा। और जो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है, ये मेरा जो है ना माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी वाला जो पार्ट है, वो देखो उसमें से एक साइन एक्स तो यहाँ पे चला जाएगा। तो जो मेरा साइन एक्स बचा रहेगा यहाँ पे, जो मेरा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बचा रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इंटू डी टी मेरा बचा रहेगा साइन एक्स डी एक्स, तो डी टी लिख दिया मैंने। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो गया। तो इसको तुम माइनस टी टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हो। उसके बाद तुम कॉस को सब्स्टिट्यूट कर देना टी से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने ले लिया आइदर पी और क्यू ऑड, ठीक है। तो जो ऑड वाला है उसके जो बगल में है उसको तुम टी पकड़ लोगे, ठीक है। और अगर दोनों ऑड हुआ, सपोज ये भी ऑड हुआ, 7 हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा 7 हो गया, तो तुम क्या करोगे, तो तुम जैसा तुम्हारा जैसा मर्जी वो तुम कर सकते हो। तुम cos x को टी मान सकते हो या sin x को भी टी मान सकते हो। तो अगर सपोज मैंने cos x को टी माना यहाँ पे, तो cos टू द पावर 7 तो t टू द पावर 7, और sin ये तो ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको तुम वैसे भी पॉलिनोमियल वैसे तरह ही सॉल्व कर सकते हो। तो जो ए पॉइंट तुम्हें याद रखना है वो है कि जो अगर सपोज 1 ऑड एंड 1 इवन है, तो ऑड के जो बगल वाला है उसको तुम टी पकड़ लोगे, और अगर दोनों ऑड है तो तुम किसी को भी पकड़ सकते हो। तो ये मेरा तीनों पार्ट कवर हो गया, कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन, और एक जो कॉम्बिनेशन बाकी रहेगा वो इवन बाकी रहेगा ना। तो अगर P एंड Q बोथ आर इवन, अगर बोथ आर इवन हुआ तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा उससे सिमिलर है जो मैंने बताया था ना एक पॉइंट पे,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स वेयर एन इज अ पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है ना, dx। तो ये तो तुम ये वैसा ही होगा, तो तुम इसको पावर को 1 में रिड्यूस करोगे, तो ये मैं लिख देता हूँ रिड्यूस पावर टू 1, रिड्यूस पावर टू 1। अब उसमें क्या था, तुम एक फंक्शन था, अब इसमें तुम फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो तुम देखो ये तो मैं आसानी से कर दिया ना, 1 माइनस इसको पकड़ के, तो इससे बड़ा तुम्हें देगा भी नहीं। तो अगर दे भी दिया 4, तो अगर 4 दे भी दिया तो तुम क्या करोगे, तुम पहले तो तुम मतलब इसमें ब्रेक करोगे, क्योंकि तुम एक को ही रिड्यूस कर सकते हो, तुम इसको तो रिड्यूस नहीं कर सकते ना। हाँ, तो वो कर सकते हो तुम, पर जो है वो तुम 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मेरा हो जाएगा dx। तो यहाँ पे भी वो लगेगा। हाँ, तो ये तुम सिंपली कर सकते हो। वैसे भी हम लोग मतलब थोड़ा साइड मूव करते हैं, तो अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ इन सभी का, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा टू द पावर 4 कर दूँ, ठीक है, तो टू द पावर 4 अगर मैं कर दूँ तो अगर मैं टू द पावर 4 कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x मेरा हो जाएगा। ये जो है टू द पावर 4 होता है मेरा 16, तो 1/16 साइन टू द पावर 4 2x, ठीक है। ये जो थीटा है ये मेरा एंगल है, ठीक है। तो इसको तो तुम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, ये, ठीक है। तो तुम मेरा ये हो जाएगा 1/16 साइन टू द पावर 4 2x। अब देखो, अब मेरा साइन टू द पावर 4x का तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता ना, तो तुम इसको भी तुम थीटा मान लो, ठीक है, थीटा मान लो। तो इसको तुम रिड्यूस करो, फिर रिड्यूस द पावर टू 1, और रिड्यूस द पावर टू 1 करने से तुम्हें आ जाएगा सपोज साइन टू द पावर समथिंग, साइन टू द पावर समथिंग इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस समथिंग इंटू साइन टू द पावर 6 साइन, सॉरी टू द पावर नहीं, सॉरी पावर रिड्यूस करना है ना। तो ये सपोज मेरा साइन टू द पावर 4 2x मेरा आ गया समथिंग इंटू साइन a इंटू साइन 4x प्लस b इंटू साइन 6x, ऐसा कुछ आ गया मेरा, ठीक है। तो पावर 1 में रिड्यूस हो गया, तो तुम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, cos टू द पावर माइनस कॉस टू द माइनस कॉस 6x बाई 6, ठीक है, माइनस कॉस 6x बाई 6 ये हो जाएगा b इंटू, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसके बाद इनके ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे मैं, ठीक है। तो क्रक्स में मैं बाद में बता दूंगा, मैं एग्जाम्पल में फोकस कर रहा हूँ, अभी एक डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हें। तो अगर सपोज ये वाला तो इजीली हो गया ना, तो ये वाला इजीली हो गया, ठीक है। तो अगर इससे तो बड़ा पावर ऑब्वियसली नहीं देगा, मतलब WBJ या JEE में अगर दे भी दे तो सपोज 8 या मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 6 ले लिया तो वेट मिनट, हाँ, तो ये तुम्हें याद रखना है, यही तुम्हें याद रखना है, ये जो क्रक्स है, ठीक है। ये सब तो एग्जांपल्स हैं, तो हाँ, तो मैं ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, जस्ट मिनट, तो मिनट, हाँ, तो ये हो गया मेरा। हाँ, तो देखो, हाँ, तो अब अगर साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx आ गया मेरा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो इसमें भी तुम वही करोगे। तुम पहले तुम्हें देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा साइन टू द पावर mx और कॉस टू द पावर mx dx रहा, ठीक है, तो तुम तो इसे तो साइन टू द पावर समथिंग इंटू
साइन टू द पावर 2x से रिप्लेस कर सकते हो, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल पे बताया। पर अगर यहाँ m हुआ और यहाँ n हुआ और बोथ m और n इवन हुए तो तुम क्या करोगे? तो तुम मतलब देखो, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक को ही रिड्यूस कर सकते हो। तुम अगर दोनों पावर अलग अलग हुए तो तुम cos टू द पावर mx को ही रिड्यूस कर सकते हो। तुम cos टू द पावर mx इंटू साइन टू द पावर nx को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे m और n दोनों ही इवन है और पॉजिटिव है m प्लस n, ठीक है। तुम एक को ही रिड्यूस कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सपोज इस जैसे सम में, तो तुम्हें आइदर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा सपोज 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस टू द पावर 6 dx लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तुम इसको एक्सपेंड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें जो सपोज पावर आएगा वो होगा तुम्हारा कॉस टू द पावर 10 आएगा ना, 4 प्लस 6 प्लस सपोज सम द, मैं वो मतलब यहाँ पे भी कुछ नंबर आ सकते हैं, वो मत पकड़ो, 8 आता, फिर सपोज 7 आता, ठीक है, dx। तो तुम ये देखो, ये तुम्हारा वो हो गया ना, तो इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो। हालांकि ऐसा इतना बड़ा नहीं आएगा, तुम इतना बड़ा रिड्यूस भी नहीं कर सकते उतना कम टाइम में, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग आई एम टेलिंग यू गाइज। तो cos टू द पावर 10 को फिर तुम इस पावर को 1 में रिड्यूस करोगे तो cos 8x प्लस cos 7x प्लस cos 5x ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। और ये वाला तो ऑड है, ऑड मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। तो पूरा मैंने बता दिया डिटेल में बी पार्ट। फिर हम तो मैं ये रख देता हूँ, ठीक है ना, सॉरी मैं रिमूव ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं बाद में तो तुम्हें पूरा ये नहीं बताऊंगा, तो कॉपी कर लिया होगा। तो मैं सिर्फ यही रखता हूँ रिड्यूस वाला, क्योंकि मैं बाद में तुम्हें पूरा मतलब जो है ना वो तुम्हारा जो पॉइंट्स बता दूंगा कि इसमें क्या करना है उसमें क्या करना है, जो तुम मतलब शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। क्रैश कोर्स है ना इसलिए। तो हाँ, तो सी में मूव करते हैं हम लोग। तो सी में क्या है, तो मैंने p प्लस क्यू पॉजिटिव वाला पार्ट बता दिया, अब p प्लस क्यू नेगेटिव वाला पार्ट आता है। तो इसमें तो एक वाला पार्ट तुम्हें आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे जो p प्लस क्यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑड इंटीजर और p प्लस क्यू इवन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो p प्लस क्यू नेगेटिव ऑड इंटीजर वाला पार्ट है उसमें तुम्हें रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना है, और रिडक्शन फार्मूला इज नॉट इन योर सिलेबस, so you don't need to worry about this. You only need to worry about this part, and the question on this part you guys have already done it. So try to remember. So जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन लिए थे ना, जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर -11/3x इंटू कॉस टू द पावर -1/3x, तो -11/3 माइनस ये p प्लस क्यू नेगेटिव है, क्योंकि p है मेरा -11/3 और q है मेरा -1/3, तो ये हो गया मेरा -4। तो नेगेटिव इवन इंटीजर हो गया मेरा। नेगेटिव इवन इंटीजर में क्या बताया था तुम, वहाँ पे ही मैंने बता दिया था, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होता तो मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर p, जो कि है मेरा माइनस समथिंग, और cos टू द पावर q dx, ठीक है। ये सब सॉरी एक मिनट। तो मेरा p नेगेटिव है ना, मेरा p नेगेटिव है, तो सपोज मैं p सपोज, तो मैं इसको m ले लेता हूँ, m और n ले लेता हूँ, और m और n पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नीचे आया तो पॉजिटिव हो गया ना पावर। तो यहाँ पे मेरा m प्लस n मेरा है इवन, m प्लस है मेरा इवन, m प्लस n मेरा इवन है। तो इसमें तुम क्या करोगे, याद करो, तुमने वहाँ क्या किया था, तुमने नीचे लाया था, फिर जो इनका पावर है, ये जो 4 है, ऊपर नीचे उस सेक टू द पावर उसी पावर से मल्टीप्लाई किया था। तो सेक टू द पावर तुम्हें यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे भी तुम वही करोगे, तो सेक टू द पावर m प्लस n x से तुम मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर भी सेक टू द पावर m प्लस n x से मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस तो कट जाएगा सेक से, और साइन तो tan में बदल जाएगा, और फिर तुम tan x को t पकड़ लेना, और ऊपर तो है ही sec स्क्वायर x, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने डिटेल में बता दिया।
और इसका एक एग्जांपल तुमने किया भी है, तो पीछे जाके तुम देख भी सकते हो। तो हाँ, तो मैं ये रख देता हूँ और मैं जो यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ ये इंटीजर वाला पार्ट, एक मिनट, इंटीजर ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई सेक टू द पावर, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, सेक टू द पावर ये जो है, मैंने p प्लस क्यू अब नेगेटिव है ना, तो सपोज माइनस p को तुम m पकड़ लो और माइनस q को तुम n पकड़ लो, ठीक है। तो m और n तो पॉजिटिव हो गए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑलराइट। तो ये ठीक है, ये भी हो गया मेरा। सॉरी, अब हम सिक्स्थ में मूव करेंगे। तो सिक्स्थ ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सिक्स्थ जो है वो है tan या cot का इंटीग्रेशन, tan to the power mx और cot to the power mx, where you need to remember m is greater than 2, क्योंकि अगर m लेस देन 2 हुआ, अब अगर तुम्हें tan x का तो इंटीग्रल पता ही है, ln में आता है, cot x का भी ln में आता है, ठीक है। तो और tan स्क्वायर x का जो है, tan स्क्वायर x का जो है वो tan स्क्वायर x को तुम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, और sec स्क्वायर x का तुम्हारा इंटीग्रल होता है tan x, और cot स्क्वायर x को तुम cosec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर तुम्हारा होता है माइनस cot और 1 का इंटीग्रेशन dx, ऑलराइट। तो हाँ, तो ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, सॉरी मैंने बोला कि हाँ, तो सेक स्क्वायर x का होता है tan x, हाँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर तक हो गया। तो अब अगर m ग्रेटर देन 2 है, अगर m ग्रेटर देन 2 है तो तुम क्या, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है देखो, तो ये तुम्हें ऑब्वियसली याद भी होगा। तो tan टू द पावर mx है ना, तो अगर m ग्रेटर देन 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसे सपोज मेरा दिया हुआ है tan क्यूब x लेता हूँ मैं, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, tan x इंटू जो tan स्क्वायर x बाकी रहेगा वो तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। अब फिर तुम अगर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा tan इंटू सेक स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan। तो ये तो देखो tan x को मैं t पकड़ लूँगा तो यहाँ मेरा रिड्यूस हो जाएगा वो, और यहाँ पे मैं ln में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया। अगर 5 हुआ तो तुम इसको ये कर दोगे, फिर तुम वैसे ही आओगे, हाँ, तुम वैसे ही आओगे। तो ये इसको तुम एक्सपेंड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी तरह सॉल्व करोगे, फिर tan x को t पकड़ लोगे। अगर सिंगल tan x रहा तो ln में आंसर आ जाएगा। और अगर सपोज इवन में भी वैसे ही करना है, ओके। सो ये अगर 5 हुआ तो ये क्यूब होगा ना, तो ये क्यूब होगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया वहाँ पे। तो सपोज 4 होगा तो तुम ये स्क्वायर कर दोगे, तो फिर वैसे ही, हाँ ठीक है। तो तुम्हें इसमें जो रूल होगा वो होगा तुम्हारा तुम इसको एक tan x को बाहर लाओगे, फिर इनटू sec स्क्वायर x माइनस 1 टू द पावर समथिंग करके लिखोगे, फिर tan x इंटू सेक टू द पावर समथिंग x में आ जाएगा फंक्शन, तो तुम tan x को t पकड़ लोगे। तो ये तुम्हें इंट्यूटिवली आ जाएगा, कैन बी इंटीग्रेटेड रेडिली, इसलिए मैंने लिख रखा है, इंट्यूटिवली आ जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं कोसेक और सेक में, ठीक है। तो कोसेक टू द पावर mx कॉमा सेक टू द पावर mx, इसका भी 2 पार्ट है देखो। अगर m इवन हुआ और m ऑड हुआ तो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर मैंने क्यों लिखा है, पॉजिटिव के लिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो हाँ, तो अगर पॉजिटिव हुआ
तो तुम क्या देखो, तो कोसेक रहेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो साइन में ही बदल जाएगा ना। तो अगर m सपोज नेगेटिव हो गया तो तुम साइन में, तो ऊपर साइन ही आ जाएगा। तो वैसे तुम साइन तो लिखा ही है मैंने, तो cos टू द पावर mx, तो इसमें IBP लगाना है, ठीक है, IBP लगाना है। तो अगर इवन हुआ तो तुम टेक cot x इक्वल्स टू टी और tan x इक्वल्स टू टी, और अगर m ऑड हुआ तो IBP लगाना है। IBP मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये इसमें तुम्हें याद रखना होगा m नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर 1 हो गया तो तुम 1/2 का जो फॉर्मूला था 0.12 का वो यूज़ करोगे, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो तुम अगर इवन हुआ तो तुम cot x को t मानोगे और tan x को। ये तुम कैसे समझ सकते हो, देखो इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट थोड़ा मतलब लेंदी जा रहा है, तो हाँ, तो cos टू द पावर मैं कोसेक स्क्वायर ही ले लेता हूँ। हाँ, 4b वैसे ही आ जाएगा, कोसेक टू द पावर 4b। तो ये देखो, अगर मैंने cot x को t मान लिया तो देखो, तो cot x को मैंने t मान लिया तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरा हो जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt हो जाएगा, तो t हो जाएगा माइनस टी, तो माइनस टी, तो t को मैंने cot x माना है तो माइनस cot x। हाँ ठीक है, तो ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला ही हो गया ना, मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला ही मतलब वो प्रूफ कर दिया। तो अगर cos टू द पावर 4x हुआ तो भी मैं यही करूँगा। तो मेरा जो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो dt हो जाएगा, और मेरा जो बचा रहेगा वो है कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 से, क्योंकि मैंने कॉट स्क्वायर को t माना है। तो इसको भी तुम पॉलिनोमियल की तरह t³/3 प्लस t प्लस c से लिख सकते हो। तो वैसा कुछ तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तुम समझ गए एग्जाम्पल से क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तुम्हारा तो हो गया। cot x को अगर इवन रहा तो cot x को तुम t मानोगे, और अगर sec x रहा तो तुम tan x को t मानोगे, अगर ऑड रहा तो तुम IBP यूज़ करोगे। IBP, तो IBP क्या है, IBP तुम बाद में देखोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब 8 आता है, तो cos टू द पावर, हाँ तो ये इंटीग्रेशन ही है, ये सेक है, ये s है, ठीक है। तो कोसेक टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx, ठीक है। तो ये सेम एज 5c, क्यों, ये देखो अगर मैं साइन और कॉस में बदल दूं तो m और n, तो मतलब साइन और कॉस का पार्ट तो नेगेटिव हो गया, और ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो सेम एज 5c, ठीक है। तो ऑल पार्ट हो गया। तो अगर मुझे क्रक्स में बताना होगा तो तुम ये देखो, ये क्रक्स में लिखा है, देखो तुम्हें थंब रूल मैंने लिख रखा है नीचे नीचे, तो तुम ये कॉपी कर लेना, ठीक है। तो हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सपोज हाँ, तो हाँ तुमने मैंने तुमको सब मतलब वो बता दिया, एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल लेके भी बता दिया जो स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है। और इसमें तुम्हें पूरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, पूरा जो इंटीग्रेशन है पूरा कवर होता है। तो अगर कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हो तो तुम इजीली कर सकते हो इन स्टेप्स से। तो 1 या 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दास मुखर्जी या सेंगेज, हाँ तो किसी भी बुक से या प्रीवियस ईयर से, तो आ जाएगा तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ठीक है। ओके, तो हम लोग और एक फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला भी आता है, फ्रीक्वेंटली आता है WBJ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इजी भी है, ये वाला पार्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर एफ एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको देखो, अगर मैं प्रूफ भी करना चाहूँ तो भी ईजी है। तो अगर इसमें से देखो, अगर मैं e टू द पावर x इंटू एफ एक्स को t मान लूँ, है ना, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ x इंटू एफ एक्स प्लस e टू द पावर ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स। तो अगर मैं t मान लिया इसे, तो देखो अगर फिर डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से, तो e टू द पावर x कॉन्स्टेंट इंटू एफ डैश एक्स प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटू एफ एक्स जो कि है कांस्टेंट इंटू डी एक्स ऑब्वियसली इक्वल्स टू डी टी, ठीक है।
तो अगर मैं इसको बाहर लाऊं e टू दी पावर x को, तो मेरा एफ एक्स प्लस ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स कॉमन लेने के बाद हो जाएगा डी टी। तो देखो मैंने ये t माना और ये मेरा डी टी आ गया, तो मेरा डी टी जो है उसका इंटीग्रेशन है, तो ये t प्लस सी, तो ये t है मेरा ये, तो यही ठीक है। तो प्रूफ भी कर दिया मैंने, जो कि हालांकि प्रूफ बहुत इजी भी है। तो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें, है ना, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि e टू द पावर ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो ये पूरा मतलब एक, अब देखो तुम्हारा पूरा डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं आएगा कि जैसे कि मतलब e टू द पावर ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, या e टू द पावर ऑफ x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। तुम्हें कुछ मतलब रीअरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा तो मतलब इधर उधर मतलब रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को, या एक टर्म को मतलब किसी और के मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हाँ, तो ये देखो, अगर तुम देखो तो ये पूरा इसका तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे वो है, हम लोग इसको तो e टू द पावर x को e टू द पावर x ही रखेंगे, और जो ये वाला पार्ट है उसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखो माइनस एक्स प्लस वन, हाँ, तो एक्स स्क्वायर में ये लिख दिया माइनस एक्स प्लस वन, तो जो बाकी रहा अब इसका डिफ्रेंसिएशन जो है तो 2x माइनस वन होगा, हाँ, तो dx। हाँ, अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अगर इसको मैं एक पूरा फंक्शन मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया ना, सॉरी, हाँ, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, और जो अगर मैं ऐड भी कर दूँ तो ये ओरिजिनल इक्वेशन ही आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही है। तो अगर मैं इसको फिर यही फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं, एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया हमने और फार्मूला भी देख लिया। तो अब इससे मेरा जो है वो पूरा जो है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस ख़त्म होता है। तो ये सपोज पार्ट 1 में रहेगा, जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला एप्लीकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा है। अब अगले पार्ट में जो आएगा जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जो है तुम्हारा थोड़ा एल्जेब्रिक फंक्शंस और पार्शियल फ्रैक्शंस का पार्ट बाकी है, वो हम सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे ही एंड करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लास्ट था, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।